Yes. How are you? Is it audible? All good, sir. I hope you are good too. Yes, sir. Audible, sir. So just start with today's banking and finance news with the newspaper. You can go ahead. Yes, sir. So the today news on the first page were that first was that the Monetary Policy Committee of the RBI has maintained the status quo of the Monetary Policy Committee of repo rate for the eighth time, that is 6.5%. Second news is that Tamil Nadu is likely to become a hub for producing electric vehicles for based on electrical modular architecture. The third news that I found important on the first page was Indian listed companies are making profit in the fourth quarter also, and like it is approximately 5%. And in the economic and public affairs page, National Highway Authority of India is uh, likely to increase the tax of the highway for up to 5%, of by 5% across all the highways. And the second news is that the CBI, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, has recently keeping a watch over the unregulated gold, unnamed golds that are coming to India for the financial year 2024, because the CBIC and there is one more DIC committee that has seized up about 5 tons of gold this year, which is approximately 30% more than the last year. And India has like it is predicted that India has a potential. It is the third news. India has the potential to generate sustainable aviation fuel. Yes. There are other news, but those were related to increase in like summer items. It was some online delivery items, but I didn't found it very useful, so Yes. So what is MPC? I didn't put that. Sir, your voice is, sir, cracking. Your voice is lagging very much. What is MPC? Sir, Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee is includes 6 members, which has 3 members are from RBI and 3 members are from central government. The chairman is RBI governor only, and the 3 members that are appointed from the MPC. Yes, sir. Under which section they are appointed? Sir, section I don't remember right now, You sir. have said you are reading that PDF. So in that PDF there is a section written Sir, there. like I'm not. I Yes, sir, but I'm confused, like if it is correct or not. That is Yeah, tell what section you remember. 22 subclause 2, 20. 2 subclause 2 of RBI What does of it do? 22 the subclause 2 is for the making money, is printing currency. it is under section 22. That's it. There were no sub clauses, so For it was the for printing the money. for the monetary policy committee, this is perfectly the section is 45Z. 45 said, sir. Let me check once. I think it was not there. It was there, it is there. 45. Sir, I didn't remember. You didn't Sorry. get that in PDF. Sir, I've read that, but I forgot about like some sections. Okay, I'm. don't worry. Just I will go ahead revise. with a cryptocurrency. So, okay, sir. Sir, so cryptocurrency is a kind of virtual currency
It is an unregulated currency which is not regulated by any government agency, and it is in virtual form. And the cryptocurrency is in decentralized form. The main that the main idea that how cryptocurrency work is that cryptocurrency works on a blockchain system. A blockchain system is such kind of system which uses an online ledger where the transaction of the funds cannot be manipulated, sir. Just like in banking, the funds can be manipulated, but in online ledger, the funds cannot be manipulated because it is stored in every computer database, and data is transferred from each computer to another computer. So that is how cryptocurrency works. The thing that the cryptocurrencies cannot be adopted in India is because it is vulnerable to fraud and theft, because it is uncentralized and unregulated. So there is no regulation on that. Second is that there are no particular laws in our countries that regulate such kind of digital currency. Third is that it can hamper the sovereignty of our monetary policies, because if these currencies are in use very much, then if and it became the medium of exchange in the later years, that it can hamper the monetary sovereignty of India. Fourth is that the tax evasion will be very easy, because there will not be any track of the money, so people can easily do tax evasion using such cryptocurrency. So these are some of the things that is why the Indian government is not pushing us towards cryptocurrency. So what's your view on these CBDC? Will it be competitive enough for the cryptocurrency? Sir, yes, sir, yes, sir. It will be competitive enough, because we see that there are two things. First is money, second is currency. Sir, currency is just only a paper, but money has some value. The digital currency will always have the value of money, because it is in digital form. And digital form means, and it is and like just unlike the cryptocurrency, which is not regulated, the the CBDC e-currency will be regulated by RBI, and everything will be in the purview of RBI only. So even if the fraud and any kind of such tax evasion happen, the RBI will have every record of it. So that is why government is pushing us towards CBDCs, e-rupee instead of cryptocurrencies. So what's your view on farm bills? Sir, farm bills. Farm bills were like, there were total three farm bills that came. The first one was the Farm Bill, Price Assurance and Farm Services Bill 2020. Under this bill, there were two things. First one was price assurance. Price assurance means the government wanted to protect the interest of the farmers by providing a written agreement between the farmers and any third party which is going to purchase the goods. And later on, they cannot change uh, the price of the commodity which were earlier agreed in the agreement. So to wanted to protect the interest, this act came. The main drawback of this act that the farmers were protesting for was the big corporates and companies or any person, business owner, can use this kind of legal clauses, and they can insert certain liability clauses which can legally dominate the farmers, because they are not that much literate. So this can legally dominate them. The second one was the Farming Produce Trade and Commerce Bill 2020, and under this bill, it allowed the farmers to sell their produce outside any mandis, and it also allowed any kind of interstate selling of the goods or the produces that they have done. So the main thing that the government wanted to do was to increase the number of the selling points for the farmers. But this act was also very much protested by the farmers, because the only big farmers will get the benefit of this act, and the small farmers that who directly sells to the customers will not get any kind of benefit under this act. So this will create a disparity between both of them. The third act that came was Essential Commodities Act 2020. Under this, the government will have the authority to regulate essential commodity only in the case of any kind of war or famine. And
and this was the third bill. The main cons that I found was that the first, that I already tell you, that it will create the disparity between the two farmers, the like the big farmers and the small one. And the second is that the second thing is that there will be a reduction in uh, the government interference in the price adjustment, because there will be there will not be any transparency that how these prices are determined. So that is why the farmers were protesting. And the third reason was already told, that the legal domination by the big players and corporate towards the farmers. That's it. Okay, so let us start with our PDF session, that is banking finance basics. Today, what we are going to read? Yesterday, we have completed everything about the finance check truncation system, demand draft, and bonds, commercial papers. These were covered. T-bills also covered, Certificate and deposit. certificate These of were covered. deposit covered, isn't it? So, yes, sir. Yes, sir. Today we'll Just start let with, me I know think, if my after screen is visible. certificate of capital market. Okay. Okay. See, this is a capital market. Capital market means more than 1 year. If we are giving going for the funding, that is known as a capital market. So in this type of market, every Hmm. instrument available will have maturity of more than 1 year, Hmm. Long. not less than 1 year. Getting this thing. There are Hmm. two types of market, like a primary market and secondary market. So first one is the primary market, where we can see that Yes, sir. IPO जो आता है, that comes under the primary market. Yes. First time issuance of security. And the further or subsequent type जो security issue होती, that is secondary market. Suppose Hmm. IPO came and you have got the shares. Then what will happen, Hmm. that is the primary market. But if you will buy and sell the shares through the stock exchange, that comes under secondary market. Getting this point? Okay. Through the NSE, BSE, that comes under the Got it. secondary market. NSC, BSc. Yes. Hmm. Next is a bond. Bond is what? Bond is a long-term debt instrument. कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट कोई भी इशू कर सकता है बॉन्ड फॉर रेजिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट. They will be issuing these bonds, and that will bear a fixed rate of interest, that is known as a coupon amount. What you were asking yesterday, what is coupon? Hmm. Coupon number. So Yes, coupon sir. is, suppose a company has issued 100 rupees ka bond and having 10% Hmm. coupon rate. This is called coupon Hmm. amount, coupon rate. Then the And person will get this bond at 90 rupees. no, see, this is, that is called ये what? वो नहीं. Zero coupon bond. What you are asking, Oh, okay. वो केवल टी बिल्स में एप्लीकेबल होता है. जैसे टी बिल्स मिलते हैं, वो जीरो कूपन पे इशू होते हैं. बट बॉन्ड विल इशू एट अ फेस वैल्यू. 100 रुपीज आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो बॉन्ड आपके हाथ में आएगा. एंड 10% अगर कूपन रेट है, मतलब 10 रुपए, आपको उस ईयर के एंड में मिल Hmm. जाएगा. 10 रुपीज बस, प्लस 100 Hmm. रुपीज उसका प्रिंसिपल. Hmm. गेटिंग दिस? स्टार्टिंग में आपने खरीदा 100 रुपए दे के, और लास्ट में आपने बेचा 110 रुपए में. दिस इज अ कूपन अमाउंट, Hmm. और दिस इज द जो भी होल इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो व्हाट यू विल कूपन गेट. यस. अमाउंट. सो दैट इज कॉल्ड कूपन अमाउंट. बॉन्ड बॉन्ड अमूमन तौर पर ज्यादा टेन्योर के लिए लेते हैं, 5 साल, 10 साल, 50 साल ऐसे. To raise the money from the market. यस. जैसे कॉर्पोरेट Government. बॉन्ड है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड कोई Hmm. समझो HDFC बैंक आया और वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर दिया मार्केट में. तो मार्केट में तो बॉन्ड Hmm. फ्लोट होगा, लेकिन उसके बदले उसने कुछ मनी ली है लोगों से.
जिसमें वो कुछ इंटरेस्ट देगा, हम्म कूपन देगा, कूपन पेमेंट। सो हम्म दैट इज कॉल्ड हम्म कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसको कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। हम्म नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड मीन्स वही समझो, एचडीएफसी ने बॉन्ड इशू किया मार्केट में, एंड आफ्टर 2 इयर्स और कोई भी मेंशन्ड ईयर में वो बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मतलब शेयर हो कन्वर्टिबल गया वो एक बॉन्ड। तरीके से। यस, वो शेयर हो जाएगा, मतलब वो ऑनर बन जाएगा बंदा जिसके पास बॉन्ड होगा। हाँ। दैट इज कन्वर्टिबल बॉन्ड। फिर आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है बॉन्ड मार्केट में, वो कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। फिर एक टर्म आता है मसाला बॉन्ड। हम्म मसाला बॉन्ड मीन्स हमारी इंडिया की एंटिटी है जो रुपी में कहीं से पैसे रेज करे इंटरनेशनल मार्केट से। गेटिंग दिस? हम्म उसको बोला जाएगा मसाला हम्म बॉन्ड। मतलब अगर हमारी कोई समझो, फर्स्ट कंपनी वाज आईएफसी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल। जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया था फॉरेन में, और 1,000 करोड़ रुपीज रेज किए थे। गेटिंग दिस पॉइंट? मसाला बॉन्ड मीन्स वो बॉन्ड हम्म जो कोई इंडिया की एंटिटी है रुपी में पैसा उठा रही फॉरेन मार्केट से, हम्म। और इसको पैसा उठा रही है या पैसा इन्वेस्ट करा रही है इंडिया में, ऐसा हो रहा है? या पैसा पैसा डेट पे उठा ले रही रही है, क्या मीन्स हो मतलब? बाहर से पैसा लेगी लोगों से। सर तो वो भी तो डेट हो जाएगा ना एक तरीके से। भाई बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है। बॉन्ड। हाँ मतलब बॉन्ड सेल कर रही है बाहर के लोगों को, मतलब चाहे वो बाहर ही सेल नेशनल हो या करेगी फॉरेन मसाला नेशनल हो बॉन्ड। उस पे। हाँ हाँ। हाँ मतलब वो डिपेंड नहीं करता नेशनल्स को सेल कर रही है जो बाहर है, या फिर फॉरेन एंटिटी या कॉर्पोरेट किसी को भी मतलब। हाँ यस, किसी को भी ओवरसीज मार्केट में होना चाहिए ठीक है। बस। हाँ हाँ बस ये ठीक। सो इशूअर ऑफ मसाला बॉन्ड, जो आरबीआई ने जिनको बोला है कि भाई आप इशू कर सकते हो, इंडिया की कंपनी है वो इशू कर सकती हैं, एनबीएफसी इशू कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू कर सकता है। नेक्स्ट वी आर विथ ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड यू नो दैट टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इनको, और इनका जो पैसा आएगा हमारे पास वो केवल इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है, पॉल्यूशन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स में नहीं। हम्म हम्म सो दैट इज अ ग्रीन बॉन्ड, और इनको रेगुलेट करता है सेबी। इसमें मतलब टैक्स नहीं लगता सर इस बॉन्ड पे? दैट्स व्हाई पीपल विल इन्वेस्ट। अगर टैक्स लगेगा तो क्यों पीपल इन्वेस्ट करेगा उसमें? हाँ हाँ हाँ। हम्म कुछ इंसेंटिव मिल रहा है तभी। नेक्स्ट इज हम्म डिबेंचर। डिबेंचर इज जस्ट लाइक अ बॉन्ड, just like a bond, everything is just like a bond in debenture, but except that thing कि अगर कोई कॉर्पोरेट इशू कर रहा है तो उसको हम उसके बॉन्ड को भी कभी डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा हम्म बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर कभी नहीं इशू करती है। बोथ आर सेम, बोथ आर फॉर टेकिंग द मनी, बोथ आर फॉर गिविंग हम्म सम फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज सेम। बट इट इज मोर यूज्ड बाय लार्जर कंपनीज और कॉर्पोरेट्स, नॉट यस, गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट ऑलवेज यूज डिबेंचर इज डिबेंचर इशूड बाय। एंड गवर्नमेंट ऑलवेज यूज बॉन्ड। तो क्या गवर्नमेंट इशू कर सकती है डिबेंचर या फिर नहीं कर सकती? भाई डिबेंचर इशू किया उसको बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा मगर गवर्नमेंट कर दी को तो वो डिबेंचर भी बॉन्ड हो जाएगा एक तरीके से ये। गवर्नमेंट कभी भी डिबेंचर इशू नहीं करती, पहली बात। अच्छा। कॉर्पोरेट हाँ वर्ल्ड वही में वही पूछ रहा डिबेंचर था सर। बॉन्ड को डिबेंचर ही बोलते हैं। तो हाउ गवर्नमेंट विल इशू समझ। डिबेंचर? हम्म नाउ इक्विटी इन्वेस्टमेंट मींस लिस्टेड कंपनी अगर आपको करानी है तो आईपीओ में आप लेते हो, पैसा लगाते हो, दैट इज कॉल्ड इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप। गेटिंग दिस थिंग? और सेकेंडरी मार्केट में अगर आप जाते हो तो हम्म बाय सेल करते हो इक्विटी को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी में इन्वेस्ट कर। नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स सपोज एनी कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट and I have one share of that company, then कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उससे क्या होता है, उससे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, शेयर होल्डर्स खुश होते हैं, प्लस
अगर कंपनी के पास उस प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्ट करने का एवेन्यू नहीं है, जगह नहीं है, तो वो सीधा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। नाउ व्हाट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग शेयर इज what number of shares in the market, that is called outstanding shares. What is the preference share? Preference shares means प्रेफरेंसली हम कुछ लोगों को ऐसे शेयर्स देते हैं जिनका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ पर्सन्स को। इनके पास इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं सर, वोटिंग राइट कंपनी प्रेफरेंस में। शेयर के पास नहीं होता। इनके पास नहीं होता है वोटिंग। फर्स्ट थिंग कि इनको फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा। अगर और दूसरी चीज की, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे हम्म। पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, फिर बाकी में जाएगा। गेटिंग दिस? फिर बाकी के शेयर होल्डर्स पाएंगे। सो केवल दो चीजों में इंपॉर्टेंस देते हैं, फिक्स डिविडेंड इनको मिलता है। नाउ लाइबिलिटी इज व्हाट यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम एनी बैंक और इंस्टीट्यूशन, देन यू आर लाइबल, यू हैव लाइबिलिटी ऑफ दैट लोन। हम्म। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम। इसमें क्या होता है कि suppose you went to the bank and banker person is not behaving very much good with you, is not withdrawing money, you are saying that please withdraw this money, they are not withdrawing, then what you will do, you will complain against that banker. Okay, firstly you will complain to that office. सपोज एसबीआई था तो एसबीआई को आप कंप्लेन करोगे। देन अगर 30 डेज के अंदर वो कंप्लेन रिजोल्व नहीं होते, देन यू विल कम टू द दिस स्कीम, बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम, जहां आप आरबीआई को कंप्लेन करते हो तो आरबीआई उसके ऊपर एक्शन लेता है। सो दैट इज कॉल्ड ओम्बर्समैन स्कीम। हम्म। और एट प्रेजेंट दैट इज फ्रॉम 2021 एक इंटीग्रेटेड ओम्बर्समैन स्कीम। इसके पहले क्या था, एनबीएफसी के लिए अलग सी स्कीम थी। भाई एनबीएफसी से अगर आप कंप्लेन नहीं रिजोल्व कर पाए 30 डे में, तो एक अलग जगह कंप्लेन करोगे जो केवल एनबीएफसी का ओम्बर्समैन रहेगा। बैंकिंग के लिए अलग थी पहले, लेकिन 2021 में क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड स्कीम हो गई, सब मिला के केवल एक ओम्बर्समैन बनेगा। गेटिंग दिस थिंग? So please remember this section, under which section and this year. No fee is required for the complaint, and अगर complaint 1 month के अंदर settle नहीं होती है, then you can go ahead with a banking ombudsman. ठीक है? हम्म। So these are the things I have told that एनबीएफसी के लिए पहले अलग सी स्कीम हुआ करती थी, 2018 में एक आई थी एनबीएफसी की, लेकिन फिर 2021 में सब मर्ज हो गई, एक स्कीम बन गई है। So if anybody ask हम्म। about ombudsman, you have to say these things. Under हम्म। this section, it is this section 2021 में इंटीग्रेटेड ओम्बर्समैन आई, जिसका ये था। ठीक है? This thing is not need not to study because you have to know only the basics of ombudsman. Now here we come with a public provident fund, that is a saving scheme, and you must have heard कोई तो इन्वेस्ट कर रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है? प्रोविडेंट फंड। इसमें मिनिमम 500 रुपीज, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन वन टाइम। मेच्योरिटी पीरियड इज 15 years and fully tax exempted under section 80C. Getting this thing? हम्म। सो पीपीएफ में हम क्यों करते हैं, क्योंकि टैक्स टैक्स नहीं एग्जेम्प्ट है लगता। उसमें। कितना हम कर सकते हैं, 500 to 1.5 लाख, इन एंड अ सिंगल मेच्योरिटी ईयर। पीरियड इज 15 years। नाउ बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? सो बैंक अकाउंट आर मेजरली डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट्स, टू टाइप्स। डिमांड में हाँ, ये बताया सेविंग, था आपने।
सेविंग सेविंग इन करें, करंट और टर्म में फिक्स्ड FD RD। एफडी। हाँ, तो इसमें FD चेक बुक नहीं मिलेगी आपको, FD RD। इसमें मिल जाएगी चेक बुक, ठीक है। ना वो सेविंग बैंक क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट मिलता है और लिमिटेड विथड्रॉल्स रहते हैं एटीएम के थ्रू उसमें, गेटिंग दिस थिंग, और इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली। बट करेंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। करेंट अकाउंट में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की जाती है, वो जनरली बिजनेसमैन खुलाते हैं। दिस लाइन यू कैन रीड। FD is for a हाँ। minimum of 7 day to 10 year. You can open. हम्म, So you have to हम्म, know the basic of this कि minimum 7 day to 10 year FD can be opened. हम्म, And FD में आपको मिलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड। एंड FD में आप इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर 10,000 से ज्यादा है इंटरेस्ट इनकम आपकी, देन यू विल पे TDS। टैक्स डिडक्शन। यस, मतलब अगर आप 1 लाख दिए थे और 1,10,000 हो गया है, तो TDS बैंक पहले वही। से काट के आपको 1,09,000 के आसपास देगी। गेटिंग दिस थिंग। रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स रेगुलर इंटरवल में कुछ मिनिमम अमाउंट देते रहना। दैट कम्स अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट। मिनिमम 6 मंथ का होता है, मैक्सिमम 10 years। और मिनिमम आप डाल सकते हो 500 रुपीज पर मंथ, और उसका मल्टीपल में 100 के मल्टीपल में नेक्स्ट 6 month to 10 years। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट FD में कितना टाइम लिमिट है, ये इंटरेस्ट वाला चीज। 7 years, 7 days to maximum 10 years एफडी। यस। एंड और रिकरिंग में कितना है। रेकरिंग में 6 months और फिर उसके बाद 10 years। यस, नाउ यू कैन टेल मी अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ FD। स्पेशल फीचर ऑफ एफडी। एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। एफडी इज मोस्टली फॉर मतलब एंड एफडी फॉर सीनियर सिटीजन द इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो हाई। एंड एफडी कैन नॉट इशू चेक्स। एफडी एफडी टेक डिपॉजिट्स एंड ये तो हो गया था। यही सर मोस्टली यही है कि दिस एफडी इज फॉर द हायर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन for at a secured place like banks, and you will get a higher rate of interest, then FD is the best source for getting interest on your money. And the tax will also be exempt. Tax will be exempted if it is below 1 lakh. यस। So see, there is one important thing for the financial inclusion. What I have told. One is a BSBDA, Basic Saving Bank Deposit Account, जहाँ आप 0 रुपये मेंटेन करके भी अकाउंट खुला सकते Yes. हैं। एनी कॉमर्शियल बैंक आपका ये अकाउंट खोल सकता है। प्लस दिस केम इन 2005। Okay? अभी क्या होता है कि जैसे हम प्राइवेट सेक्टर्स में अकाउंट खुलाते हैं, उसमें 25,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसा मांगता है। बट इन दिस अकाउंट देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्योरली फॉर दिस। हाँ, अगर कोई जीरो मिनिमम बेसिक। रिक्वायरमेंट नहीं, तभी ज्यादा लोग आएंगे अकाउंट खुलाने। हाँ। तो दिस इज वन बैंक में एक इंडिविजुअल है अवेलेबल, मतलब एलिजिबल अकाउंट खुलाने के। प्लस टोटल क्रेडिट 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख से ऊपर हो रहा है क्रेडिट, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर मोर। यू आर नॉट एक्चुअली दैट लेवल, मीन्स ये हम गरीबों पे फोकस कर रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे। बट इफ यू आर गेटिंग 1 लाख से मोर का क्रेडिट, देन वी विल थिंक दैट यू आर नॉट दैट पुअर, यू आर कमिंग बाय योर वे इन दिस पुअर कैटेगरी। सो मैक्सिमम बैलेंस 50,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फॉर BSBDA only।
यस, थ्री सिक्स सेवन यस, के ऊपर। अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा रूल और आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ जाएगा कुछ। गेटिंग दिस पॉइंट? हम्म। And this thing is a total of debit by cash transfer or cash withdrawal, that is a 10,000 से exceed नहीं होनी चाहिए in a month. So this is a SWIFT. SWIFT means हम जो अगर बाहर आपको पैसा ट्रांसफर करना है, then you will need a SWIFT code. मतलब ये इंडिया है, अगर इंडिया से बाहर कहीं भी करना है, then you will need SWIFT code. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बाहर फॉरेन में ओवरसीज ट्रांसफर करने में काम आता है, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट. हियर यू कैन सी दिस फॉर इज गेटिंग दिस थिंग. सो अंडर द स्विफ्ट कोड व्हाट हैपेंस कि ये एक मैसेज देता है कि हम अपना बैंक डेबिट करके सामने वाले का बैंक क्रेडिट कर रहे हैं. तो स्विफ्ट इज दिस थिंग, मीन्स ये नेटवर्क है बिटवीन द टू बैंक्स फ्रॉम यहाँ के एसबीआई, इंडिया के एसबीआई से यूएस का कोई भी बैंक हो. सो दैट विल बी कनेक्टेड विद द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म. यू कैन सी हियर एट और स्विफ्ट कोड। first एट four टू are bank 11। code and country code, location, branch. सर ये भी याद करना पड़ेगा, ये पूरा 1 2 3 बैंक No, कोड, you have to सर्विस, remember only कंट्री this. कोड। What is SWIFT? Full form and what is the purpose for this? Next is digital banking. So here we are reading the most important things which are used in the banking sector for the payment, like a NEFT. एनईएफटी। So in the NEFT, there is a no upper and minimum limit for the transfer, and half hourly batch settle होती है इसमें. मतलब ऐसा कि अगर आप 12 बजे गए हो नेफ्ट कराने, कोई पर्सन आया है 12:05 में, ठीक है, तो आप दोनों का फॉर्म और पैसा सेटल होगा 12:30 में, इकट्ठे बैच में. गेटिंग दिस? हाफ आवर के सेटल होता है, जैसे 12:30, 1 बजे, 1:30, 2 बजे ऐसे. सो टिल द 1 बजे वो चीजें सेटल होगी जो 12:30 से 1 बजे तक जितने भी हमारे पास नेफ्ट के ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट आई है वो. गेटिंग दिस थिंग? यस सर, यस। सो वो 1 बजे सेटल होगा सब. So there is a यस 23 half hourly settlement batches. So you can see they are running from the 8 a.m. to 7. Getting this thing? Getting this thing? सॉरी। So यस। 8 a.m. से 7 p.m. तक नेफ्ट का नेटवर्क चलता है. So in between that half hourly settlements होते हैं और नेफ्ट में कोई मतलब हर मिनिमम. सेटलमेंट के लिए हाफ आवर का टाइम लगेगा, मतलब मिनिमम हाफ आवर टाइम। यस, मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, अगर हाफ आवर का, हाँ, मतलब हाफ साढ़े आवर का बारह गैप से हो जाएगा उसके बाद। इसके बीच में कितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो हम्म। इतने ही बजे सेटल होंगे सब, चाहे वो इस टाइम पे आए हो चाहे इसके बीच में हाँ आए, मतलब इतने बजे सेटल. हाफ आवर पे सारे सेटल होंगे एक टाइम पे, चाहे कितने भी ट्रांजेक्शन आ जाए। हम्म. ठीक। नेक्स्ट इज आरटीजीएस. आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपीज रहता है. अगर आपको ट्रांसफर करना है 2 लाख रुपए तो आप आरटीजीएस कर सकते
अगर आपको 1.5 लाख ट्रांसफर करना है देन यू विल गो विथ नेफ्ट और एनी अदर वे बट नॉट आरटीजीएस। एनएफ और नेफ्ट में सर सबसे मिनिमम इम्पोर्टेंट, अमाउंट 50,000 था। किसका? नेफ्ट का कोई मिनिमम अमाउंट तो नहीं है ना, मतलब कि क्या कुछ सुन है रहे हो उसका भाई, क्या मिनिमम सुन रहे अमाउंट? हो, ये क्या है? लाइक नहीं नहीं, आरटीजीएस का नहीं, नेफ्ट का। ये नेफ्ट का मिनिमम अमाउंट। दिस थिंग व्हाट इज रिटन नेफ्ट? सर इस पे स्विफ्ट कोड आ रहा है, मतलब इंटरनेट इशू है या क्या है, बट हाँ अब आया है। हाँ आप देख लीजिए। नो मिनिमम मैक्सिमम। ठीक। नहीं मैक्सिमम लिमिट तो देखा था, मिनिमम लिमिट समझ नहीं। ठीक। सो आरटीजीएस में 2 लाख का मिनिमम ट्रांजेक्शन होता है, दिस इज ऑन टाइम। 12:09 में हम्म। आपने आरटीजीएस किया तो 12:09 में सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और आरटीजीएस का कुछ चार्ज लगता है इन केस ऑफ बैंक चार्ज, 15 रुपए प्लस जीएसटी। ऑनलाइन आप करोगे तो कोई चार्ज नहीं है, बट बैंक जाके आप कराओगे तो कुछ चार्ज लगेगा। फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन। हम्म। ठीक। नेक्स्ट इज आईएफएससी। आईएफएससी यू नो, हमको किसी बंदे को ट्रांसफर करना है पैसे तो बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए। बेसिकली आईएफएससी इज 11 डिजिट कोड, जिसके पहले 4 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं बैंक का नाम। जैसे ये एसबीआई बैंक है तो एसबीआईएन, गेटिंग दिस थिंग, सी ईयर, एसबीआईएन। एस चौथा बी आई। करेक्ट, चौथा करेक्टर जीरो होगा ऑलवेज। देन लास्ट के 6 कैरेक्टर जो होंगे वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये वाले कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लखनऊ मेन ब्रांच। गेटिंग दिस थिंग। यस सर। नेक्स्ट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसमें क्या होता है 24/7 अवेलेबल है हर दिन के लिए। 7 डिजिट का नंबर होगा जिसको हम एमएमआईडी बोलते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। जैसे आपका एमएमआईडी अलग होगा, बाजू वाले का एमएमआईडी अलग हम्म। होगा, अब आपको करना है उसके अकाउंट में ट्रांसफर। देन यू विल गेट हिज एमएमआईडी and transfer the money by writing that MMID from your phone. So there is some limit in this, like 5 lakh rupees is the limit maximum transfer. You can see here 5 lakh rupees मैक्सिमम। ठीक। और इंस्टेंटली सेटल सर होता ये है। भी किसी ऐप के थ्रू होता है या फिर ये कैसे होता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है? किसी ऐप से तो होता आप नहीं होगा ये? जिस भी बैंक में इंटर अकाउंट हो बैंक। तो ऐप से आप कर सकते हो आईएमपीएस। अच्छा, उसके फोन के मोबाइल ऐप से सेक्शन होता है कुछ? यस। आईएमपीएस। ठीक। नेक्स्ट इज एनपीसीआई। व्हाट यू नो अबाउट दिस? सर व्हाट इट यू इज नो अबाउट दिस? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, सर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट the main technology of UPI is invented by the National Payment Corporation of India. It is basically payment aggregator for all the online UPI based payment apps. See, everything is coming through NPCI, means in payment system। और एनपीसीआई बना है दो चीजों से, आरबीआई प्लस दिस इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बना है एनपीसीआई। Yes sir। बट फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल बी रीडिंग फ्रॉम टुमारो, ओके, इन डेप्थ। सो NPCI। यस, फॉर ओके। टुडे